हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का स्टडी करेंगे। देखिए, तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस क्या हुआ? ऑल द प्रोसेस विच इज इसेंशियल फॉर लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। ऑल द processes which are essential for continuity of life are called as life process. It includes nutrition, respiration, circulation, transportation, excretion, control and coordination, and reproduction. All these processes are essential for continuity of life, and these processes are called as life processes. लाइफ प्रोसेसेस हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक एक कर डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। These are certain topics which we deal inside the life processes. अब है कि व्हाट आर द लाइफ। लाइफ क्या है? आप इसे नोट्स बनाते चलेंगे, कॉपी में, नोटबुक में आप लिखते चलेंगे। अब देखिए लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ को डिफाइन हम लोग करेंगे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा। तो लाइफ कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स लाइक मूवमेंट। मूवमेंट क्या हुआ? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वन प्लेस टू अनदर प्लेस। So all living can show movement, that they can move from one place to another place. What in plants? Movement occurs in their body parts. Movement occurs in their body parts. That is, plant cannot move from one place to other place, but their body parts can move in different direction according to their stimulus like sunlight, gravity or water or any chemicals. So these are called as like characteristic of life process. Movement. Next क्या हुआ? Nutrition. यानी all living needs food. All living needs food. That is called as nutrition. तो plant and animals required food for their continuity of life. Next क्या है? Respiration is the process of burning of food. The process of burning of food is called as respiration, and by this we obtain energy which is utilized to perform various types of works. Next क्या हुआ? excretion. So all living can excrete waste material from their body. Excretion क्या हुआ? Removal of waste material. और क्या है? irritability. All living can show irritability. That is, so positive or negative respond. All living shows respond against a stimuli. जितने भी एनी लिविंग्स हैं वो सभी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड शो करते हैं। व्हाट आर स्टिमुलस? एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट आर कॉल्ड एज स्टिमुलस. Light, dark, hunger, thirst, all these are stimulus, and all living shows positive or negative respond against their stimulus. Next देखेंगे reproduction. The reproduction
is one of the most important characteristic of life. All living can reproduce, but non-living cannot reproduce. So these are certain characteristic by which we can distinguish living from non-living. यह सभी कुछ characteristics हैं जिसके द्वारा living और non-living को distinguish कर सकते हैं. We will study all the life process one. अब देखेंगे हम लोग न्यूट्रिशन. तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखिए न्यूट्रिशन राइट कीजिए, कॉपी नोट करिए. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच, देखिए न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दोज सबस्टांसेस which is essential for growth, development and need of energy is called as nutrition. फिर से देखिए सुनिए एक बार. Nutrition is the process by which all living organisms obtain those substances which is essential for growth, development and need of energy called as nutrition. Okay, and the substances which are obtained during called as nutrients, and substances which are obtained during the process is called as nutrients, like carbohydrate, protein, lipid, vitamins, minerals and water. Minerals and water. So these are nutrients. Carbohydrate is directly utilized for energy. Proteins are building block of our substance. Due to protein helps in building of making of our tissue cells. And lipids are essential. Nutrition, vitamin helps in different types of life process occurring in our body. Minerals and waters helps in digestion. These are the nutrients which we obtain during the process of nutrition. And all the substance which direct is obtained from food. All the nutrients which are obtained from food. So indirectly we can say that nutrition is the process of intake of food. Nutrition is the process of intake of food. यानी फूड ऑब्टेन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के टाइप्स देखेंगे हम लोग. तो न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. न्यूट्रिशन is of two types. On the basis of mode of obtaining food, nutrition is of two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. The nutrition is of two types: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. देखिए autotrophic nutrition. During autotrophic nutrition all living organism, नोट बनाते चलेंगे, all living organism synthesize their own food. Their ऑन फूड. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं. वो सभी कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल देखिए क्या हो गया? सर्टेन बैक्टीरिया, ऑल
all green plants. So these are autotrophic nutrients. They obtain food by the process of autotrophic, और ये अपना भोजन जो है वो खुद है जो सिंथेसिस। और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? फर्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लिखिए लिखिए, नोट कीजिए। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism synthesize their food with the help of chemical. Organism synthesize their food with the help of chemicals. जब ऑर्गेनिज्म केमिकल की हेल्प से फूड सिंथेसाइज करेंगे वो कहलाएगा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल लिखिए, आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। देखिए क्या करेंगे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और सॉइल से कोई केमिकल्स H2S लेंगे। इन्हें क्लोरोफिल जो है वो नहीं चाहिए, सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बनाएंगे? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S। सल्फर जो वो क्या हो जाएगा? डिपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ? सल्फर क्या हुआ? डिपोजिट हो गया। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन नॉट इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन नॉट इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होता है। हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन डू नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का फर्स्ट टाइप कीमोट्रॉपिक, सेकेंड फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नोट कीजिए, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस all living synthesize food, all living can synthesize their own food in presence of sunlight photon, that is sunlight is called as autotrophic nutrition। लिखिए लिखिए, all the living organism which can synthesize their own food in presence of sunlight called as photo autotrophic nutrition। एग्जाम्पल क्या हुआ? ऑल ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए इसमें क्या केमिकल इक्वेशन है? तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करेंगे और यहाँ पे H2S के जगह पे वाटर H2O यूज किया जाएगा। और क्या चाहिए इसके लिए? क्लोरोफिल भी इसेंशियल है, क्लोरोफिल भी चाहिए और सनलाइट भी इसेंशियल है। क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। So during photoautotropic nutrition, oxygen evolved, but during chemoautotropic nutrition, oxygen do not। अब देखें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नोट कीजिए कॉपी में, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर से लिखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर। अब देखेंगे हम जैसे एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स फंजाई some bacteria, all these are heterotrophic organism। अब देखिए टाइप्स हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट देखिए कौन सा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। डिफाइन कीजिए इसको, लिखिए, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain their food from other organism called as parasitic nutrition। न्यूट्रिशन के जिस प्रोसेस में कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करेगा वो क्या कहलाएगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी दो टाइप्स का, एक्सोपैरासाइटिक एंड इंडोपैरासाइटिक। एक्सो द व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सोपैरासाइटिक। जैसे एग्जांपल देखिए, मॉस्किटो हो गया, बेड बग, खटमल, तो यह क्या हो, बॉडी से बाहर रहता है और ऑब्टेन करता है फूड, वो क्या कहलाया, एक्सोपैरासाइटिक। इंडोपैरासाइटिक क्या हुआ, जो बॉडी के अंदर रह करके फूड ऑब्टेन करेगा वो क्या कहलाएगा, इंडोपैरासाइटिक। जैसे एस्केरिस यह बॉडी के अंदर रहता है और अंदर रह करके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड होता है उसको ऑब्टेन कर लेता है। एस्केरिस जो पेट में जो खोता है वो एस्केरिस हुआ, तो एस्केरिस हुआ वो क्या हुआ, इंडोपैरासाइटिक हो गया। देखिए प्लांट भी है जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, जैसे कास्कुटा, अमरबेल ऐसा प्लांट है जो क्या है, या जो होता है वो पैरासाइटिक प्लांट है। या प्लांट के ऊपर पूरी तरह से जो होता है वो थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर जो है कवर कर लेता है, और जहां प्लांट्स का फ्लोएम प्रेजेंट रहता है वहां तक यह अपने रूट को पेनिट्रेट कर देता है और वहां से फूड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या हुआ, कास्कुटा एक पैरासाइटिक प्लांट है। नेक्स्ट क्या है, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या हुआ, लिखिए, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन in which organism obtain their food from dead plant and animal debris called as saprophytic nutrition। क्लियर। फिर से लिखिए, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म obtain their food from dead and decaying substance called as saprophytic nutrition। एग्जाम्पल देखेंगे, फंजाई, certain bacteria, these are saprophytic। तो इसमें होता क्या है, देखिए, और जो है मान लिया कि यह कोई डेड बॉडी है या जो है वो डेड प्लांट या एनिमल बॉडी का डेब्रिस है। तो जैसे ही डेड प्लांट एनिमल का बॉडी होगा इसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारा सैप्रोफाइट्स आ जाएंगे। सभी क्या हुआ, सैप्रोफाइट्स हैं। ये सभी क्या हैं, सैप्रोफाइट्स हैं। ये सभी सैप्रोफाइट्स हैं। क्या हो गया, सैप्रोफाइट्स। अब सैप्रोफाइट्स क्या करेंगे, सैप्रोफाइट्स अपने बॉडी से डाइजेस्टिव जूस से क्रिएट करेंगे। सैप्रोफाइट्स अपने बॉडी से डाइजेस्टिव जूस से क्रिएट करेंगे जो कि
फूड है उस फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्टिव जूस से क्रिएट किए। कौन, सैप्रोफाइट्स। अब ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, जो फूड है उस फूड को, जो सॉलिड फूड है उस फूड को लिक्विड फूड में कन्वर्ट करेगा। सॉलिड फूड को लिक्विड फूड में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड फूड में कन्वर्ट करेगा। अब जब फूड लिक्विड बन जाएगा तो यह फूड क्या होगा, फूड को फिर से क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर से क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। क्या होगा हम लोगों का, दो हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और क्या हो गया, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखिए हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक और मोड है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। लिखिए उसको, होलोजोइक न्यूट्रिशन। थर्ड टाइप्स क्या हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको डिफाइन कीजिए। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ solid or liquid called as holozoic nutrition. Intake of food in the form of solid or liquid, in the form of solid or liquid called as holozoic nutrition. तो एग्जाम्पल देखिए, अमीबा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग ह्यूमन मैमल्स, ठीक है। अब देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है यह 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप्स क्या है, इंगेशन। इंगेशन यानी इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। नेक्स्ट क्या होगा, इंगेस्टेड फूड रहेंगे, उसका क्या होगा, डाइजेशन। क्या हुआ, डाइजेशन। डाइजेशन क्या हुआ, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, with the help of enzyme। अब डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब फूड का क्या होगा, यूटिलाइजेशन, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट क्या होगा, जो रिमेनिंग फूड बच गया उसका क्या होगा, रिमूवल, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या हुआ, इगेशन, सॉरी इगेशन। इगेशन यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड food in the form of ficus is called as igation। अब देखिए ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। कौन कौन सा, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन। अब देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए जो हम लोग बहुत पहले जानते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो ग्रास खाते हैं वो सभी हर्बीवोरस कहलाते हैं, है ना। काऊ, गोट ये सभी ग्रास खाते वाले कार्निवोरस, हर्बीवोरस। अब देखिए कार्निवोरस, कार्निवोरस जो फ्लेश खाते हैं, जो फ्लेश ईटर हैं वो कहलाते हैं कार्निवोरस। ओमनिवोरस जो दोनों को खाते हैं, ग्रास भी खाएंगे फ्लेश भी खाएंगे, वो ओमनिवोरस। ये संगुइनिवोरस
सैंगुइनिवोरस जो ब्लड सकर हैं, जो ब्लड को सक करते हैं, वो सभी कहलाते हैं सैंगुइनिवोरस। फिर देखिए डेट्रिटिवोरस, डेट्रिटिवोरस जो फीकस खाते हैं, वो सभी कहलाते हैं डेट्रिटिवोरस। पिग, क्रो, ये सभी क्या है? डेट्रिटिवोरस हैं। और भी बहुत सारा है होलोजोइक के टाइप्स उसमें फ्रोंगिवोरस, फ्रोंगिवोरस जो फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स ईटर, वो सभी क्या कहलाएंगे? फ्रोंगिवोरस कहलाएंगे। क्लियर? तो यह सभी हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट हुए 5 स्टेप्स में।